बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज उज़ैर अली। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। And currently I'm working as project coordinator at Patha HealthNet Echo Pakistan. We welcome you all to this session on tips for clinical long case presentation by Professor Imtiaz Ahmed Dogar Saab. So I would like to hand over the mic to Professor Iqbal Afridi and his team. Sir, over to you, please. Thank you, Azir Saab. Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone. I welcome you all in this webinar on a very special topic, that is the tips for long case presentation. Before starting, I will request Dr. Buck to recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, और वो बादशाह है, सब ऐबों से पाक है, सालिम है, अमन देने वाला है, निगरानी करने वाला है, ज़बरदस्त है, खराबी दुरुस्त करने वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह ताला लोगों के शिर्क से पाक है। वो माबूद बरहक है, पैदा करने वाला है, ठीक ठीक बनाने वाला है और सूरत बनाने वाला है। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, सब चीज़ें उसकी तस्बीह करती है, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Thank you. Now I like to introduce our very special guest, Professor Imtiaz Ahmed Dogar. He is the chairman of Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at Punjab Medical College and University at Faisalabad. He is also President-elect Pakistan Psychiatric Society. Professor Imtiaz, now I hand over it to you. Okay. इम्तियाज साहब, जब तक आप हो, आपका बहुत शुक्रिया कि you have spared time for this important topic, and I am very thankful to you, and I hope that the trainee will really enjoy, because learning should be through fun rather than fear, and it will provide a great opportunity to prepare themselves not only for exam but also during their clinical practice in the interest of patient, to diagnose properly and manage properly. Now, thank you very much, and now I'll request Imtiaz Dogar that we should start this program on time. Thank you. And I'm also thankful that I can see Professor Mukhtar and a very regular Professor Asad Tamizuddin and so on. So now, Imtiaz Dogar, आपकी तरफ mic दे आए हैं. Thank you. Sir, we cannot figure out Professor Imtiaz Dogar साहब, इन्होंने किस नाम से ज्वाइन किया हुआ है? डॉक्टर कुछ बोलना चाहेंगे? He is secretary of the Pakistan Psychiatric Society. सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम मुख्तार साहब, जब तक इम्तियाज साहब तैयार हों, आप वेलकम कह दें सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स को, और बता भी दें कि इस बार इम्तिहान भी हो रहा है, और इंशाल्लाह प्लेजेंट एक्टिविटीज होंगी। Inshallah. Welcome to all residents and
एक अपॉर्चुनिटी जो हमें अभी ये थ्रू वर्चुअल नेटवर्क से एक एजुकेशनल पोर्टल हमने पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी ने शुरू किया है। तो इसमें काफ़ी एफर्ट्स हैं एग्जीक्यूटिव्स के और प्रेसिडेंट साहब के। अभी माशाल्लाह से काफ़ी एक सक्सेस हो गया है और जस्ट अ बिट डेलिब्रेट, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, ही इज़ द डीन ऑफ साइकियाट्री फैकल्टी एज वेल। एग्जाम इंशाल्लाह होगा और इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी इन द अगस्त। कोविड की वजह से हो सकता है कि ये 2 सेंटर्स में डिवाइड हो जाए FCPS का एग्ज़ाम, एक कराची में हो जाए और एक इस्लामाबाद में हो जाए। फ्यूचरिस्टिक व्यू जो है FCPS का और जितने भी हैं, तो वो ये है कि might be like in the coming 1 year all the papers will be MCQ, क्योंकि फैकल्टी ने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। असद साहब अभी यहाँ पर मौजूद है, ही इज़ द फैकल्टी मेंबर, टीम साहब भी यहीं पर मौजूद है। तो इट्स बीन डिसाइडेड मे बी लाइक इन द नेक्स्ट 1 ईयर वो फिर पहले कॉलेज सबको इंटीमेट कर देगा, लेकिन वो वाले कैंडिडेट्स जिनके एग्जाम्स 1 साल के बाद होंगे तो दे नीड टू बी प्रिपेयर देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। दूसरी बात ये है कि चाइल्ड साइकेट्री का जो करिकुला है और जो TORs हैं वो सारा कुछ कंप्लीट है। आई मीन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी विद इन 6 मंथ्स टाइम हमने कॉलेज को हैंड ओवर कर दी है फैकल्टी ने, और वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन 6 मंथ टाइम ये एक अनदर फेलोशिप वो होगा। उसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सारा कुछ है वो फिर मोस्ट प्रोबेबली कि वो वाले लोग होंगे जिन्होंने एडल्ट साइकेट्री FCPS के एग्ज़ाम दे चुके हों, वो एंट्री और उनका सारा जितने भी उसकी मेथोडोलॉजी है वो फिर कॉलेज डिसाइड करके सबको इंटीमेट कर देगी। तो दिस इज जस्ट आई वांटेड टू हैव अ बिट ऑफ अपडेट। इम्तियाज साहब को नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं बताता चलूं कि हमारे डिपार्टमेंट में ये सूरत हाल थी कि कल बारिश से पूरा अस्पताल भर गया था, लेकिन हमने पानी वानी निकाल के सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो आपको नजर आ रहे हैं वो डोगर साहब के इंतजार में है, और मैं डोगर साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये टॉपिक लिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बगैर मजीद टाइम जाया किए माइक हैंड ओवर टू प्रोफेसर डोगर। सर थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थॉट के थोड़ा डिफरेंट चलें, बाकी टॉपिक्स तो लोग कर रहे हैं थ्योरी वाले एस्पेक्ट, और ये स्टूडेंट्स की ज़ाहिर है इसमें थोड़ी सी उनको टिप्स भी मिल जाएंगे और बेटर वे में दे कैन प्रेजेंट इन एग्जाम। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आप इसको स्लाइड शेयर पे अगर कर लें, स्लाइड शो पे। हाँ जी सर कुछ आपके पास मतलब नहीं तो आप कोई स्लाइड सर इम्तियाज साहब आप कर देते हैं। इम्तियाज साहब आप कोई स्लाइड्स प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप इंटरेक्शन है? नहीं सर स्लाइड्स हैं साथ। ठीक है सर, फिर तो स्लाइड शेयर कर दें। जी हो गया, स्लाइड हो गया जी, चल पड़ा। स्लाइड्स आ गई हैं, आ गई हैं जी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अगेन फॉर्मली, and we are very thankful to Professor Iqbal Siddi, our president, and our cabinet, and of course माशाल्लाह बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने हमें ज्वाइन किया है। अब स्लाइड्स जो है वो आप लोग आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट करेंगे, ऐसे ही है ना कि हमने करनी है? यस सर। अब बताएं डॉक्टर यूब आप करेंगे नेक्स्ट? सर आप खुद भी कर सकते हैं, यू आर द को होस्ट, आप कर सकते हैं सर। ठीक है चलो ठीक है जी। लेट्स कम टू ऑब्जेक्टिव्स जी स्ट्रेट अवे। The participants, they will be able to have insight into long case assessment in FCPS, even in MD psychiatry, DPN and MCPS examination. लेकिन हमारा main focus जो होगा वो part 2 FCPS होगा। Presentation of long case routines में आप लोग जो units में करते हैं, as well as its preparation and then management of case according to biopsychosocial model in our scenario. These are some of the objectives. लेकिन रूटीन में भी जो चीजें हम डिस्कस करेंगे लोगों को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और एज वेल एज इन देयर OPDs एंड इनडोर्स में दे कैन बी ऑफ सम हेल्प, दे कैन गेट सम ऑफ द टिप्स। गोइंग फर्दर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड चलाएं जी। सिलेक्शन ऑफ केसेस, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर कैंडिडेट्स। एग्जामिनर्स तो माशाल्लाह आइडिया है, इट्स ऑल योर लक। तो आप अपना केस खुद ड्रॉ में चुनते हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो दे सिलेक्ट द नेम, और कन्वीनर जो होता है हु इज हेड एग्जामिनर दे कैन चेंज द केस इफ इट केस बिलोंग्स टू सेम डिपार्टमेंट एज इज फ्रॉम कैंडिडेट। तो अगर आपका सेम वाला आ जाए तो कन्वीनर की चॉइस है, वो चेंज कर सकता है, सेम रख सकता है। और कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ है, जो पैनल ऑफ एग्जामिनर्स हैं, अगर हम वापस जाके देखते हैं, प्लीज पिछली स्लाइड पे जाइएगा।
Previous slide. Ji. The panel of examiners is being decided by CPSP. And they are usually not from your department, they are from different cities or from other departments. So again, उस morning नहीं ये decide होता हो कि पीछे से mail आती है तो convener उसको follow करता है. तो वहाँ choice नहीं होती. So it's all your luck and how you perform. Let's next go towards next slide. Time frame है, it's very, very important. 45 minutes are interaction with the patients. Sometimes people are worried कि शायद 30 minutes हैं. 15 मिनट में लिखने का टाइम 15 मिनट्स अलग है और उसमें आपने क्या लिखना है वो ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करते हैं क्या उसका फॉर्मेट है एंड देन देयर इज 30 मिनट्स ऑफ असेसमेंट 15 मिनट्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो सीपीएसपी देता है और इंडिपेंडेंट असेसमेंट होती है बाय बोथ द एग्जामिनर्स. दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ताकि आप लोगों का एग्जाम प्रोसेस की सारी क्लैरिटी हो जाए कि टाइम फ्रेम किस तरह डिवाइडेड है. सो तो ये 1.5 घंटा है जो आपकी किस्मत का फैसला करता है आपके केस लेने से लेकर आपका एंड होने तक और इसको आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हम सम ऑफ द टिप्स और सम ऑफ माशाल्लाह सीनियर एग्जामिनर्स हैं उनकी भी इनपुट लेंगे वाइल डिस्कशन में. गोइंग ऑन फर्दर फ्रॉम दिस if we see next slide is preparation में of course be confident candidates के लिए and take 3-4 papers present on the table and write headings and subheadings is history and mental state examination. So this can save your time. अगर आप मरीज के इंटरेक्शन से पहले अपने पेपर्स को सेट कर लें that can वो जो एंजाइटी आपको उस वक्त होती है रिकॉर्डिंग में that you can save. और एक पेपर को आप सेव कर लें केस समरी के लिए एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स मेरे एग्जामिनर्स साथी भी शेयर करेंगे कि उनका टाइम हिस्ट्री लेने में पूरा हो जाता है 45 मिनट्स विच इज इनफैक्ट नॉट दैट गुड. और समटाइम्स एग्जामिनर्स को दे आर वेरी काइंड हार्टेड क्लू देना पड़ता है कि डॉक्टर साहब इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अदर थिंग्स और इवन वो सीपीएसपी वाले आके बताते हैं 5 मिनट रह गए हैं इस तरह. So time management is very, very important in long case. Majority of the लोग जिनका problem आता है result में, it's their poor time management. Place your watch on one side of your table. जो proposed time division है, that is 25 minutes. जिसमें आप उनकी assessment करें, history की, mental state examination की. Next 10 minutes में you are supposed to do physical examination. और फिर अगर आप 10 मिनट जो आपके पास है उसमें आप चीजें रिवाइज कर लें उस फॉर्मेट में जो आपने शुरू में लिखा हुआ है हेडिंग्स में सब हेडिंग्स में हिस्ट्री और मेंटल स्टेट में उसमें कोई और चीजें ऐसी रहती तो नहीं क्योंकि 45 मिनट्स बाद पेशेंट आपके पास चला जाना है. राइट अप करते हुए अगर वो चीजें आपको फिर याद आई तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा उनको पेशेंट से वेरीफाई करना. तो इट्स सजेस्टेड इज 25, 10 एंड 10. इस तरह आपके 45 मिनट्स पूरे होंगे. और गोइंग ऑन फर्दर जो प्रेपरेशन में एक चीज जो बड़ी अहम है इफ यू गो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन. आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो आपके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे आपको बताएंगे केस के फॉर्मेट के बारे में और आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो पेशेंट के साथ है एंड दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय vigilantly by the panel of examiners. That's very, very important. Not only the introduction, your whole process, जो आपकी assessment का आप करते हैं 45 minutes, उसकी बकायदा marking है और 1/3 है उसका scope. आप ये ना कहें कि अभी आपको कोई देख नहीं रखा सिर्फ presentation के time पे होगा. Be vigilant कि you are being watched and vigilantly आपकी assessment भी हो रही है. अगर examiner चाय भी पी रहा हो, तो even then be they are having a keen eye on you and they are vigilant about it. So introduction is very, very important. How you introduce yourself to the patient और उसके onward फिर further flow बनता है. अभी जो हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे वो रूटीन वाला है लेकिन सारी चीजें रूटीन वाली पेशेंट्स में नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द टाइम पेशेंट्स जो है वो हाफ ट्रीटेड है, समटाइम फुली ट्रीटेड है और सम ऑफ द टाइम्स जो है वो अलोन है पेशेंट, बल्कि मेजॉरिटी अलोन ही होता है. किसी के साथ कन्वीनियंट डिसाइड करता है कि इसको अटेंडेंट की जरूरत है, वरना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू आर सपोज्ड टू असेस द पेशेंट. तो किस तरह उस फ्लो को आपने कंट्रोल करना है
या कहीं स्ट्रेट अवे आपने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन से स्टार्ट करना है, किस कंपोनेंट से, तो हम जो डिवाइड करते हैं लिखते हैं, दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस। लेकिन जब आप पेशेंट के साथ असेसमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट शैल बी स्पॉन्टेनियस, टाइम वाइज, और उसी जो प्रेजेंट सिनेरियो में उसकी बेसिस पे हो। आई होप यू आर गेटिंग सम ऑफ द पॉइंट्स। तो अगर डिफरेंट केसेस होंगे अदर देन रूटीन, थोड़ा सा हम एंड पे भी उसको डिस्कस करेंगे अनयूजुअल सिचुएशन में। नेक्स्ट गो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, तो बी वेरी क्लियर अबाउट देम। दे शैल बी ब्रीफ, क्रिस्प, टू द पॉइंट। आजकल हम देखते हैं कैंडिडेट्स जो हैं वो पेशेंट्स के वर्ड्स नहीं यूज करते, अपना इंप्रेशन यूज कर लेते हैं प्रेजेंटिंग में, या डायग्नोसिस यूज कर लेते हैं। प्लीज डोंट यूज दैट। दिस शैल बी इन द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट व्हाट एवर दे आर सेइंग, नॉट योर इंप्रेशन, नॉट योर डायग्नोसिस और अ बुक पिक्चर, और ऑफ कोर्स ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। और अगेन मैं फोकस करूंगा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स उन केसेस में दोज हु आर गोइंग वेरी स्मूथ एंड वेरी क्लियर, जो आपके साथ इंटरव्यू के आ रहे हैं, लेकिन सम ऑफ द टाइम्स आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से शुरू करना पड़ता है इफ योर पेशेंट इज म्यूट, एंड सम ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन से शुरू करना पड़ता है। हिस्ट्री के चंक्स एंड पीसेस आप इन बिटवीन कलेक्ट कर लेते हैं, और जहाँ आपकी लिमिटेशन हो वो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आप बता सको कि पास्ट हिस्ट्री के बारे में या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में आपकी क्या लिमिटेशन और क्या सूरत हाल है। सो गोइंग ऑन फर्दर फ्रॉम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, तो इनको ब्रीफ रखें, क्योंकि सारी आपकी हिस्ट्री, सारा आपका इंप्रेशन फिर इसकी बेसिस पे बनना है। नेक्स्ट स्लाइड जी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, इज देयर एनी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर? अगर है तो ऑफ कोर्स उसकी डिटेल आप देंगे, आपके रेलेवेंट हुआ, पर्टिकुलरली हेड इंजरी, एनी फीवर, एनी सीएनएस रिलेटेड इलनेस है तो उसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें। यूजुअली लोग इलेबोरेट नहीं कर पाते, एक फैक्टर बता के दे आर हरीड अबाउट अदर थिंग्स। फिर हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस में आपकी डिटेल इलेबोरेशन है, जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताई, कोर्स ऑफ सिम्टम्स है, फिर आपकी एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, इफेक्ट्स हैं। इनको अगर आप यही इलेबोरेट कर लें तो ये चीजें आपको फिर बाद में फॉर्मुलेशन बनाने में, समरी बनाने में, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखने में और उनकी मैनेजमेंट प्लान में बड़ी हेल्प करती हैं। तो व्हाट वी हैव सीन के कैंडिडेट्स एक दफा कुछ चीजें पूछ के फिर जंप करके दोबारा आते हैं, पूछते हैं, तो एक एरिया जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको कंप्लीट करके गो टुवर्ड्स नेक्स्ट। फिर ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो इन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की है वो आप यही डिस्कस कर लो। So this history of present illness in fact is the backbone of long case. तो अगर आप इसके वाइज हैं, अगर आप इसके बारे में अच्छे वेल रिहर्स्ड हैं, आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में प्रेजेंट की हुई हैं और आपके एग्जामिनर्स आपको देख रहे हैं कैसे आप इसको असेस करें, फिर आपकी एक ग्रिप बन जाती है। इसमें भी कुछ सजेशंस हैं, लाइक रूल आउट केयरफुली इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड दे मे बी मल्टीपल। सिंगल फैक्टर पे आप फोकस ना करें, अगर एक मरीज बता दिया। एक्सप्लोर अदर्स, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एंड डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज, ये भी आप हिस्ट्री में ही रूल आउट करते जाते हैं। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोग्नोसिस, ये भी आपको हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में कुछ मिल जाते हैं। अगर आपने केयरफुली एक अच्छी हिस्ट्री रिकॉर्ड की हुई हो तो डेफिनेटली आपको इन सारे ये क्लूज मिल जाते हैं, एंड दे हेल्प यू लेटर ऑन in your management plan and facing your discussion related to case. Going on towards further, next slide please. Next slide ji, Dr. Ayub. Then is the past psychiatric history. No, back जाइएगा please. नो बैक, इससे भी ऊपर। हाँ जी, पास्ट साइकाइट्रिक हिस्ट्री, इट्स पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलनेस सीम्स एपिसोडिक, तो उसमें आप डेफिनेटली उसके रिकॉर्ड करें साइन एंड सिम्टम्स को। असेसमेंट रिकॉर्ड इफ एनी पेशेंट के साथ अवेलेबल है, या वर्बली जितना उसको याद है। पहले आप ओपन एंडेडली पूछें, फिर आप क्लूज भी दे सकते हैं, इंजेक्शंस का या मूड स्टेबलाइजर का पूछ सकते हैं, लेकिन दैट शैल बी एट द एंड। एंड एनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री विजिलेंटली, दैट कैन गिव यू सो मेनी थिंग्स। फिर आप उसकी मेजर मेडिकल सर्जिकल इलनेस, स्पेशली हेड इंजरीज, हॉस्पिटलाइजेशंस एंड अदर डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद देम,
इसको आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और ये जो आपकी नोटिंग यहाँ होगी ये आपको हेल्प करेगी मैनेजमेंट प्लान जब आप डिस्कस करते हैं। यहाँ नोट करके उसको भूल ना जाएं, फिर इसको जब आपकी असेसमेंट होगी वहाँ ये चीज़ें डिस्कस होंगी। गोइंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड is family history, details of parents and siblings, details of psychiatric, major medical illness if present, family history of psychiatric illness, uncles, aunts, grandparents, both paternal and maternal. Sometimes हम बहन भाई और पेरेंट्स का पूछ के बस कर देते हैं, तो हमने बाकी लोगों का भी पूछना है, और अगर किसी एक में पॉजिटिव है तो उसकी डिटेल चाहिए, और वो सिमिलर इलनेस टाइप है कि डिफरेंट है, ताकि आपको अपना डायग्नोसिस डिफेंड करने में आसानी हो। समटाइम हम कह देते हैं पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री या पॉजिटिव पास्ट हिस्ट्री, दैट इज नॉट इनफ। वो आपको आगे क्लू देती है, उसमें फिर फर्दर हेल्प करती है। गोइंग ऑन टू वर्ड्स, इमरान को बुला, इसको कहें रख दीजिए, आप आके इसको करें जरा स्लाइड शो में जी। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में हमने इसकी डिटेल्स कर ली जी, इसको स्लाइड शो में कीजिएगा, यही रहे, नहीं आपने छेड़ो जी। हाँ जी, हो गया जी, फैमिली हिस्ट्री हो गई। गोइंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग, ताकि हम टाइम वाइज मैनेज कर लें चीजों को। पर्सनल हिस्ट्री, so personal history is a bit detailed in our format, all of you may be knowing. इन सब के बारे में एक humble suggestion जो है वो ये है कि elaborate certain areas according to age of patient. For example, अगर आपका 60-70 years का elderly person है तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगी उसके childhood और early parenthood में। Age wise explore करें, मे बी उसका current focus ज्यादा important हो, उसकी property distribution, उसके forensic aspects. So focus more on the areas if have links with etiology, presentation, management and prognosis. आप उस एरिया को ज्यादा elaborate कर सकते हैं, बजाय आप सारा टाइम डिटेल में हर हेडिंग को फॉलो करें और आपके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए टाइम ना बचे। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। और अगेन इसमें भी जो स्पेशल एम्फेसिस है साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री को आप इग्नोर ना करें। यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड and this can help you, this can be the cause or consequence of your illness, and other aspects like don't ignore drug abuse and forensic aspects as well. Sometimes these may be the cause or these may be the complications of his illness. So wherever you notice any positive thing in any of the areas of personal history, please dilate that, elaborate that. That can be of much help. जी जी। हमें अपनी लैपटॉप स्विच करनी है तो 2 मिनट के लिए हम थोड़ा आपको यहाँ पानी बहुत ज्यादा कल से बारिश का भरा हुआ था, सब चीजें बारिश में खराब हैं। अगर बीच में इंटरप्शन हो जाए तो फिक्र नहीं करना, हमने स्टैंड बाय में दूसरा लैपटॉप रखा है, उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें शायद 2 मिनट लगे। ओके, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कर लीजिएगा जब चाहे। सर आप कैरी ऑन करें तब तक। हो सकता है कि इनकन्वीनियंस आ जाए तो टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से आप कंटिन्यू करें। आप प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी केस कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का वक्फा करके दूसरे लैपटॉप पे चले जाते हैं। तो पर्सनल हिस्ट्री को हमने क्लियर कर दिया जी। डोंट गो इनटू मच डिटेल, गो एलाबोरेट ओनली दोज एरियाज जहां आपको चाहिए। लेकिन एग्जामिनर को पता हो कि आपके सारे एरियाज आते हैं, आपने अपने तौर पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, कहीं डिस्कशन में वो आ जाए तो आपको हेल्पफुल हो। गोइंग ऑन टुवर्ड्स प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी विच इज द नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर यू नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करें। हाँ जी, वही कर रहे हैं जी। So try to cover areas all under subheadings, especially those who have strong association with the etiology, presentation, management and prognosis of the case. Sometimes हम सारी डिटेल पे और प्री पर्सनल कर लें कलेक्ट अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इन एरियाज को ना मतलब मिस करें जहां पर्टिकुलरली कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनकी एसोसिएशन होगी आपकी करंट इलनेस से। May it be paranoid personality, may it be schizotypal personality, may it be borderline personality, or very prone person and obsessional personality,
और अगर एज बिलो 18 है तो फोकस ऑन पर्सनालिटी ट्रेट्स. समटाइम्स कैंडिडेट इस चीज को मिस कर देते हैं. यंगर पेशेंट्स में भी दे ट्राई टू डिस्क्राइब होल ऑफ द प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी. देन another important aspect, this is all about history. फिर हम आपकी इनपुट लेते हैं इसमें, आपको क्वेश्चंस में और बाकी लोगों के फीडबैक. रिकॉर्डिंग में हमारा जो नेक्स्ट है, आप जी चले नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी. डॉक्टर प्लीज जी. फिजिकल एग्जामिनेशन ये करते तो आप एंड पे हैं मेंटर स्टेट के बाद. रिकॉर्ड इसको आप अर्लियर कर लें, मिडल में कर लें, ये कहीं इस बारे में वेरिएबल है. But usually missed by candidates due to anxiety or issues of time management. ये शो करता है कि कितने स्किलफुल हैं आप और कितने स्मार्ट हैं और कितने का आप इसके यूज टू हैं. सो इसकी वेल रिहर्स करें and pay more emphasis to systems pertaining to presenting complaints of the candidates. Are we clear? So, उस सिस्टम पे ज्यादा, अगर कैंडिडेट आपका कह रहा है मुझे एब्डोमिनल पेन है तो आप प्लीज उस पे फोकस करो. अगर वो डिसोसिएटिव वाला है ठीक है, वी कैन वेट. नजीमी साहब, असद साहब, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग. और मेरे ख्याल में शायद वो चेंज हो रहा है तो हम आपके पर्टिकुलरली शुक्रगुजार हैं. It's a pleasure to hear from you. Or I think it's a very good idea to select this topic because for two reasons. I think we are doing the other topic, but this is very, very important. So I'm sure all residents from different centers will benefit and they will understand कि इसको कैसे हम standardize कर लें. Secondly, exam भी आ रहा है. मुख्तार साहब ने भी बता दिया अगस्त में, तो ये बड़ा टाइमली इस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन है because those preparing the exam can get a lot of benefit. So always a pleasure to hear from you. Sir, thank you. Can you confirm, please? Can you see your physical examination? यूब साहब चलाएं जी नेक्स्ट स्लाइड. We are on. कनेक्ट हो गया दोबारा जी. देखिए. तो प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी अब हम फर्दर बात कर लेते हैं कि देयर आर मेनी एरियाज व्हिच यू नीड टू फोकस. लेकिन चूंकि आपके पास सिर्फ पेशेंट ही होता है, उसी के अकाउंट पे आपने रिलाई करना होता है, तो यू नीड टू एक्सप्लोर relevant areas. They are more important rather than focusing on childhood and other aspects. If they are available, कोई attendant है तो कर लें, but show your concern कि आपको इन चीजों का आइडिया है और आप उस बारे में कॉन्फिडेंट हैं. Dr. Sahab, can you see the slides and can you hear us? I am here जी, I am hearing you. और स्लाइड भी मैं देख रहा हूँ. फिजिकल एग्जामिनेशन पे फोकस हो जाए. Okay, sorry for inconvenience. It's okay. जी फिजिकल एग्जामिनेशन जी एक्सीलेंट. अच्छा ये है. सो यूजुअली मिस्ड बाय कैंडिडेट्स. हम बात कर रहे थे एंजाइटी, इश्यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट. आपको स्किलफुल और स्मार्ट होना चाहिए, वेल रिहर्स्ड आप आए, पे मोर ऑफिसेज ऑन द सिस्टम पर्टेनिंग टू प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो जाए, एग्जामिनर को भी आइडिया हो जाए कि आप उसके इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं. एंड डोंट मिस वाइटल साइंस एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर शायद इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑटोमेटिकली है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली उनको एक्सपोज करते हैं, ऑलवेज टेक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड एनी फर्दर कंपोनेंट. टेक योर पेशेंट इनटू कॉन्फिडेंस. जी नेक्स्ट स्लाइड जी. एक्सीलेंट. शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. ऑल्दो जैसे मैंने कहा हिस्ट्री और मेंटल स्टेट आप साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपकी आसानी के लिए डिफरेंट हो सकती है. Has been divided into different subheadings, but while addressing assessments, go according to flow of patient. तो flow of patient को भी follow करें, लेकिन अगर manic patient है तो थोड़ा सा आपका assertive control भी थोड़ा सा उस पर नजर आना चाहिए, क्योंकि सारे examiners देख रहे होते हैं आपकी टेक्निक, आपकी assessment कि आप किस तरह चल रहे हैं. So complete any area if you started rather than jumping here and there.
and coming to those areas later in the later phase. So this is one important suggestion कि अगर patient self talk कर रहा है, आप hallucinations ही address कर रहे हैं, तो उस area को complete कर लें, then go towards thinking. और usually अगर patient आपका clue नहीं दे रहा हो, तो आप presenting complaint से उनका focus या suspicion से उनका focus इस तरफ लाएं ताकि वो उन areas को elaborate कर दें, dilate कर दें. Open-ended questions आपने पूछने हैं बड़े clearly. So while recording or writing, follow the usual format, लेकिन assessment करते हुए आप अपनी convenience से, flow of patient से, जिस तरह आपके interview techniques हैं, आपको आपके departments पढ़ाते हैं, books में भी लिखी हुई हैं, उन सब को follow करें. Next slide please. तो जो usual format है, next जी mental state examination का, वो ये है द प्लेस इंस्टीट्यूट जहाँ से हम ट्रेन हुए हैं, हम इसको फॉलो करते हैं. ये रजिस्ट्रार्स मैनुअल है और यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम डिपार्टमेंट्स इसको थोड़े बहुत वेरिएशन से फॉलो ही करते हैं. अपीयरेंस एंड बिहेवियर आप नोट करते हैं पेशेंट का, फिर टॉक और स्पीच पे आपका फोकस है, मूड आप सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को असेस करते हैं. एंड बी केयरफुल पर्टिकुलरली अबाउट दीज टू, थिंकिंग प्रोसेस एंड परसेप्चुअल एब्नॉर्मलिटीज. डोंट गो टुवर्ड्स लीडिंग क्वेश्चंस इन द स्टार्ट. जब आप फर्दर प्रोब कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तब आप पूछ लें, लेकिन इन द स्टार्ट यूजुअली इसको लिंक करें पेशेंट की हिस्ट्री से और वहां से जो आपको क्लू मिल रहा है, अगर वो सस्पिशियस है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट बोल रहा है, तो वहीं से आप परसिक्यूटेड डिल्यूजन एक्सप्लोर करें रादर देन आस्किंग डायरेक्टली. इन द एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली. सेम गोज फॉर परसेप्चुअल एब्नॉर्मलिटीज. फिर आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जिनमें आप ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन और मेमोरी. अब अगर पेशेंट आपका डिलीरियस लग रहा है देखने में या डिमेंशिया वाला है, तो यू कैन स्टार्ट योर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन फ्रॉम हियर. रेस्ट ऑफ द थिंग्स को आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं. सो आप बी विजिलेंट, केयरफुल. आप उस डे के लिहाज से, अपने पेशेंट के डायग्नोसिस के लिहाज से जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्लीज मेंटल स्टेट को फ्रेम करें. रिकॉर्ड यू कैन एनी वे. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नॉट दैट फुल, मतलब यूजफुल, लेकिन आप कर सकते हैं. और इनसाइट है, ये यूजुअल फॉर्मेट है. कुछ लोग उसमें जनरल नॉलेज और बाकी चीजें भी शामिल करते हैं. और इनसाइट इज वन थिंग जो शुरू में ही आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ ही असेस कर लेते हैं. मूड है और फिर बाकी चीजें, ये नहीं कि इनसाइट आप एंड पे असेस करें. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फ्लो एंड योर स्किल एंड अदर एस्पेक्ट्स विद द पेशेंट, एंड इट हेल्प्स यू टू गो फर्दर एक्सप्लोरेशन रिगार्डिंग डायग्नोसिस एंड रिगार्डिंग अदर थिंग्स. इफ यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड थी. हाँ, फिर अब आपने ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं. आप अपने माइंड में डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हिस्ट्री और मेंटल स्टेट करते हुए बना लें ताकि आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहीं एक्सप्लोर कर लें. राइट अप आप बाद में कर लें. इसका एक खाना आपने रखा हुआ है अपने पेपर्स में. इफ श्योर अबाउट वन डायग्नोसिस देन देयर इज नो ओवरलैप विद अदर्स, देन रिकॉर्ड केयरफुली पॉइंट्स इन फेवर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल इनसाइट. अब लोग एक डायग्नोसिस है, अब उसको जब डिफेंड करना शुरू करते हैं तो वो दे गो टुवर्ड्स मेंटल स्टेट फाइंडिंग्स फर्स्ट. यूजुअली अगर आप मेथडोलॉजी को फॉलो करें, अगर उसके इंट्रोडक्शन में कोई एज में ऐसी चीज आ रही है, अगर उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में कोई ऐसी चीज आ रही है, तो वो आप स्टार्ट में वहीं से चले. ड्यूरेशन में आ रही है, ऑनसेट में आ रही है, फिर हिस्ट्री में जो क्लू मिल रहा है प्रेजेंट इलनेस में या पास्ट में या फैमिली में, उसको मेंशन करके मेंटल स्टेट की तरफ आए. डोंट जंप टू वर्ड्स के जिसमें परसिक्यूटेड डिल्यूजन है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया. तो अगर श्योर है तो एक ही डायग्नोसिस भी काफी है. और एग्जामिनर्स के पास समरी होती है, वो उसके साथ टैली करते हैं, या अदरवाइज भी पेशेंट्स के बारे में उनको आइडिया होता है. देन दे क्वेश्चन यू. इफ देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर आपके लिए सजेशंस हैं. गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक हायरार्की एंड राइट पॉइंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ ईच डायग्नोसिस. एंड डायग्नोस्टिक हायरार्की, ऑल ऑफ यू नो कि आपने ऑर्गेनिक को प्रायोरिटी देनी है, फिर ड्रग अब्यूज है, एंड फिर स्किज़ोफ्रेनिया, एंड फिर मूड डिसऑर्डर्स, एंड देन अदर्स, एंड लोअर डाउन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. कई कैंडिडेट्स उनको इनफ पॉइंट्स मिल भी जाएं टुवर्ड्स पर्सनैलिटी, लेकिन आप क्लिनिकल और पिक्चर को रूल आउट करके उस तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा है. फिर दो स्पेशल फोकस है आपके असेसमेंट में. स्पेशल फोकस ऑन कोमॉर्बिडिटी विद मेडिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स. इसको कभी मिस ना करें. और यही चीज जब आपने अगर यहाँ देख ली है तो मैनेजमेंट प्लान में भी इसको एम्फेसाइज करें. वहां हम भूल जाते हैं कि हमने पे देखा था पेशेंट डायबिटिक भी है
या उसका वेट गेन है या उसके अदर फैक्टर्स हैं, या साइकियाट्रिक में हमने असेसमेंट में बता दिया पर्सनैलिटी, मैनेजमेंट में अकेला हम मेनिया मैनेज किया जा रहे हैं या डिप्रेशन किया जा रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान का मतलब होता है जो आपने चीज़ें यहाँ असेस की उसको आप यूज़ करें। फिर कैंडिडेट्स के लिए प्रेफरेबल है कि मल्टी एग्जल सिस्टम यूज़ कर लें, वो ICD 10 वाला कर लें, DSM 5 वाला कर लें। DSM 5 में तो इतना नहीं है, 4 में जो क्लास से है। तो अगर उनका मल्टीपल चीज़ें हैं, अगर एक ही सिंगल डायग्नोसिस वो क्लिनिकल भी यूज़ कर सकते हैं। आइदर वे यूजुअली एग्जामिनर स्ट्रेस नहीं करते, बट दे कैन आस्क, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी नेक्स्ट जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब आपके पास पेशेंट ऑफ हो गया है, फिर 45 मिनट्स आपने एनफ पेपर्स फिल कर लिए हैं, 3-4 हेडिंग सारे फेल हैं। फिर जो पेशेंट विल बी गोइंग अवे, अब एग्जामिनर्स भी दूर हो जाते हैं। अब आपके पास 15 मिनट्स हैं, आपके राइट अप के समरी लिख लें, मीनिंगफुल ज़्यादा अच्छा है। फॉर्मुलेशन जो भी आप उसको नाम दें, जो यूजुअली एग्जामिनर्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिक्वायर करते हैं, वो कहते हैं अपनी असेसमेंट बताएं और अपनी फाइंडिंग्स बताएं और मीनिंगफुल समरी बताएं। सो अब आप रिकैप्चुलेट करें अपनी असेसमेंट, राइट, prepare a meaningful summary of your case। आखिरी पॉइंट तक आप पॉजिटिव पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट नेगेटिव जो हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, आप उसको लिख लें। देन अगर आप श्योर हैं अबाउट डायग्नोसिस, फिर भी लेकिन आपने लिखना है क्योंकि इस बारे में आपसे बात होनी है, आपके पास टाइम है 15 मिनट्स, आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस लिख सकते हैं अपने पेपर में, इस तरह आपको डिस्कशन में आसानी होगी। बट दीज इन्वेस्टिगेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू बायोसाइकोसोशल मॉडल कवरिंग ऑल 3 एस्पेक्ट्स। ट्रीटमेंट प्लान आप लिख सकते हैं, प्रोग्नोसिस आपसे बाद में डिस्कशन में पूछा जाना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रोग्नोसिस के सम ऑफ द कमेंट्स लिख लें। इस तरह आप इंटेलिजेंटली अपने आप को बाद में डिफेंड कर लेंगे, बजाय आपको उस वक्त बनाएं और जंप करें, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो 15 मिनट्स इनफ है, 1 घंटा पूरा है जो कि अच्छा भला टाइम है। और एग्जाम में जो कैंडिडेट्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में तैयारी कर रहे हैं, जो उनका स्टार्ट है फर्स्ट ईयर, मैं तो उनको कहूँगा वो 2 घंटे लगाएं एक केस पे कम से कम, आहिस्ता आहिस्ता उनका टाइम शॉर्ट हो। और 3rd ईयर का कैंडिडेट जाके पहुंचे 1 घंटे पे, वो भी पूरी असेसमेंट राइटअप उसका अलग हो हाफ एन आवर का। 4th ईयर के कैंडिडेट्स को ये इस तरह करना चाहिए कि वो 45 मिनट्स वाले रिपीटेड केसेस प्रेजेंटेशन करें अपने अपने एग्जामिनर्स को, अपने अपने को सुपरवाइजर्स को। दैट कैन बी ऑफ हेल्प। हाँ जी, नेक्स्ट चैलेंज हम अगली स्लाइड पे डॉक्टर प्लीज। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन। अब आपके पास एग्जामिनर आ गए हैं, तो आप अल्लाह का नाम लेके शुरू हो। बी रेडी एंड प्रेजेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय पैनल्स ऑफ जब वो आपको कहते हैं। अगेन उनका मूड होता है कि वो सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग सुनना चाहते हैं, ब्रीफ समरी सुनना चाहते हैं, मीनिंगफुल समरी सुनना चाहते हैं, हिस्ट्री सुनना चाहते हैं। दे कैन आस्क यू, आप उसके लिहाज से तैयार रहें। फिर अगेन आप हिस्ट्री ऑफ केस, mental state examination, summary assessment, formulation, they can ask you anything, or your diagnosis even. Keep the flow on until interrupted. अगर आपको एग्जामिनर सुन रहे हैं, आप प्लीज बताते जाएं अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करके, अपना डायग्नोसिस, पॉइंट्स इन फेवर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन अगर आप जहां वो आपको रोकते हैं, यूजुअली एग्जामिनर्स जो हैं वो आपको हिस्ट्री कंप्लीट सुन के आपका डायग्नोसिस सुनते हैं, देन दे गिव यू अ पॉज, इसकी जस्टिफिकेशन कराते हैं आपसे, मतलब मेंटल स्टेट की डिटेल पूछते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस और बाकी सारी चीजें होते हैं। जो एग्जामिनर्स हैं वो एक रिटन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जो उनको CPSP देता है, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस है कि वो अपने फ्लो को जारी रखें टिल इंटरप्टेड। कई जगह फाइंडिंग्स पे एग्जामिनर रोक के उसकी डिटेल पूछना शुरू कर देते हैं, किसी जगह वो डायग्नोसिस में पूछते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन्वेस्टिगेशन एक कंपोनेंट है आपकी असेसमेंट, जो आपसे उसी एग्जामिनर जो आपकी हिस्ट्री सुन रहा है पूछ रहा है, बाकी उन्हें मैनेजमेंट पूछती है, नेक्स्ट एग्जामिनर यहाँ से चेंज हो जाना। सो आप मिसिंग कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे आपके पास कैंडिडेट नहीं है, फ्लो आप अपने को मेंटेन रखने के लिए उससे जो आपकी पास्ट हिस्ट्री अगर रहती है, फैमिली हिस्ट्री का कंपोनेंट मिसिंग है, या रिपीटेड मेंटल स्टेट चाहिए, वो आप लाजमी यहाँ मेंशन कर दें ताकि वो आपका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन जाए। तो आपने केयरफुली देखा कि वहाँ आपको सारी, ताकि आप सेफ हो। फिर आप बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन आपने देनी है उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास हो।
उसमें कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बेसिक इन्वेस्टिगेशन मस्ट हो, कुछ लोग आप टू इवन सीटी स्कैन हमारे जहाँ चाहते हैं, केस पे डिपेंड करता है। आप जा सकते हैं, आप बेस्ट में तो रूटीन में भी ये सीटी और एमआरआई आ गए हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन आप दें आपके पास जस्टिफिकेशन। सिमिलरली साइकोलॉजिकल, साइकोमेट्रिक और स्केल्स और इंस्ट्रूमेंट्स आप कॉमन 8-10 डायग्नोसिस होते हैं, उनमें से हर एक के स्केल आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो स्केल आप मेंशन करें उसकी आपको थोड़ी निटी-ग्रिटी, व्हेन द एग्जामिनर आस्क के पैंस क्या है, फिर वो चुप कर जाते हैं और वो कह देते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोलॉजिस्ट हेल्प ले लेंगे, ले ले जहां अवेलेबल है, लेकिन आप भी अपने prepared हों इस चीज के bit detail help you going on further investigations के बाद। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही है, अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें। मैं वीडियो ऑफ कर दूं? कर हाँ जी, देता हूं वीडियो अगर ऑफ आप कर दें ताकि वो वॉइस आपकी आती रहे। आपकी लगता है ब्रांडविड्थ लो है नेट की। जी मैंने कर दीजिए, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशंस पे हम अगर बात करें, मिसिंग कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री, रिपीटेड एग्जामिनेशन, अब मैनेजमेंट आ गई जी। अब मैनेजमेंट भी मोस्ट कंपोनेंट है आप इसका, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जामिनर assess you in any case regarding management. तो यहाँ भी candidates sometimes अपनी all that forget biopsychosocial model के you are supposed to tell investigations and management according to these, but लेकिन अपने केस की बताएं। एक जर्नल फॉर्मेट को ना फॉलो करना शुरू कर दें। आप जर्नल फॉर्मेट को अपने कैंडिडेट्स के लिहाज से फिल करें कि बायोलॉजिकल में आप क्या क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ड्रग्स हैं, क्या क्लिनिकली आप कैसे मैनेज करते हैं। योर एग्जामिनर कैन आस्क either way how you manage in your unit or what are the recent guidelines. So you need to follow, you need to rehearse, you need to discuss this with your examiners, with your supervisor, जहाँ जहाँ आप preparations कर रहे हैं। डोजेज की टाइट्रेशन के बारे में आप पूछा जा सकता है। आपकी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स आपको आने चाहिए, जो जो ड्रग्स आप मेंशन करें। चॉइस ऑफ ड्रग आपकी क्या रीजन है, आप क्यों ये चूज कर रहे हैं। यू शैल बी वेरी क्लियर अबाउट एफिकेसी, अबाउट अदर थिंग्स, अबाउट रिकमेंडेशंस, और आप खुद कितने फेमिलियर हैं उस ड्रग से। ये नहीं कि आप थ्योरी में कोई लेटेस्ट ड्रग पढ़ लें तो यहाँ आप वो बता दें। प्लीज वो बताएं जिसकी जस्टिफिकेशन है, जिसके साथ आप वेल वर्स्ड हैं, जिसको आप डिफेंड कर सकें। और ईसीटी अगर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ रही है तो आप इतनी उसकी डिटेल अगर है, वन ऑफ द इंडिकेशन क्या जस्टिफिकेशन है, कैसे आप उसको फर्दर वे में क्लियर करेंगे। एंड यू शैल बी नो well prepared with other biological treatments, deep brain stimulation and other aspects, vagus nerve stimulation and rest of the things. आप अगर आपका एग्जामिनर पूछ सकता है तो आप उस बारे में क्लियर हो, you shall be knowing it. नेक्स्ट स्लाइड जी। मैनेजमेंट के बाद अगर हम देखते हैं, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड हों, आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आपने बायोसाइकोसोशल मॉडल को डिस्क्राइब करना है। जो भी आप साइकोथेरेपी बताएं उसका प्रोसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिंपली कह देंगे कि आप यू आर गोइंग टू रेफर दिस केस टू साइकोलॉजिस्ट, उनको भी रेफर कर लें, लेकिन एज ए कैंडिडेट यू आर सपोज्ड के आपको मेजर टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज, पर्टिकुलरली सीबीटी, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। और आपके केसेस में कौन कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, कैसे आप उनको हेल्प करेंगे। सो केस तैयार करते हुए आप अपने ज़हन में और बाद में प्रिपेयर करते हुए अपने प्रोसेस, आपको जो भी आप मैनेजमेंट कहेंगे आपका एग्जामिनर, आप उसको उससे रेलेवेंट चीज़ें फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली आपको सपोर्टिव साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी, काउंसलिंग के बारे में वेल वर्स्ड हो, काउंसलिंग का अलग हेडिंग भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज सोशल मैनेजमेंट, जिसमें स्किल्स ट्रेनिंग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एंड अदर एस्पेक्ट्स, जहाँ कहीं रिलेशनशिप का इश्यूज है, कहीं बॉस के साथ डिफिकल्टीज है आपके कैंडिडेट में, उसके जो जो एस्पेक्ट आपने एक्सप्लोर किए हैं वहाँ आप सोशल मैनेजमेंट सजेस्ट करें जी। नेक्स्ट स्लाइड जी। काउंसलिंग, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट this scale in front of examiners to do counseling related to long case. वन ऑफ द कैंडिडेट आपका पेशेंट का फैमिली मेंबर बन जाता है,
यूजुअली, और दे कैन आस्क डायरेक्टली। आप पेशेंट तो उस वक्त नहीं होता कि आप क्या काउंसिल करेंगे, उसकी थ्योरी बताएं या प्रैक्टिकली करके दिखाएं, और उसमें भी आप इंफॉर्मेशनल केयर के प्रिंसिपल्स यूज करके पेशेंट की लैंग्वेज में उसका एजुकेशनल स्टेटस देख के उसके अटेंडेंट का अकॉर्डिंगली आप, सो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली फॉर कॉमन केसेस ऑफ दिस एरिया। इसको आप रिहर्स करें अपने यूनिट्स में। स्किज़ोफ्रेनिया की आपने करनी है, अगर वो शादी से रिलेटेड है एक एस्पेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं, अगर वो बाकी चीजों के बारे में जो भी पूछते हैं, आप प्लीज उसके बारे में वेल रिहर्स्ड हो। नेक्स्ट, काउंसलिंग के बाद हमारा अगला जो कंपोनेंट है प्रोग्नोसिस, व्हिच इज वन काउंसलिंग ओब्लिक प्रोग्नोसिस होता है, लेकिन एग्जामिनर समटाइम्स दे आस्क दोनों, बोथ द थिंग्स। इट्स बेटर टू मेंशन गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फर्स्ट देन बैड बाद में बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बताएंगे। कई कैंडिडेट छूटते सीधा कह देते हैं जी इसका बड़ा बैड प्रोग्नोसिस है जी, 20 years की हिस्ट्री है या मल्टीपल एपिसोड है या कोई सोशल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। यस, दोज फैक्टर्स दे आर इम्पॉर्टेंट, बट there is a way to mention such things, and you can comment on short term and long term prognosis. एक सिंगल वर्ड में ना दें, आप उसको डिटेल में बताएं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स व्हिच यू हैव आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग योर असेसमेंट ऑफ द केस। आप वो फैक्टर्स बताएं, एंड पे आप कमेंट करें कि गार्डेड है, सीमिंगली गुड है, सीमिंगली बैड है, जो भी है, लेकिन आप उन फैक्ट को मेंशन करें। डोंट इग्नोर देम और एक ही वर्ड आप कमेंट कर दें। एंड यू कैन कमेंट सेपरेटली ऑन मेडिकल और साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटी। यहाँ भी आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में उनको जहन में रखें। आपका एग्जामिनर विजिलेंट है, उसने नोट कर लिया हुआ है कि आपने मेडिकल कोमॉर्बिडिटी भी बताई हुई है, साथ साइकियाट्रिक भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट में और प्रोग्नोसिस में इन चीजों को शामिल ही नहीं कर रहे। वहां आपने बता दिया उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यहाँ आप कह रहे हैं उसकी डिप्रेशन का प्रोग्नोसिस बड़ा अच्छा है, सो वहां उसमें डिस्क्रिपेंसी ना आए। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड्स हमारी एक दो रह गई हैं, देन वी कैन एंटर इनटू डिस्कशन। रीसेंट अपडेट्स आपके बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है। दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ लॉन्ग केस, यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजमेंट इश्यूज, any recent published article to the topic or diagnosis of your case। वहां डायग्नोसिस से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। एनी रीसेंट अपडेट कैंडिडेट, यूजुअली एग्जामिनर आपको चॉइस देते हैं, आपने हालिया क्या पढ़ा हुआ है इसके बारे में, और अगर आप स्मार्ट इनफ कैंडिडेट हैं, आपने रिसेंट कोई जर्नल पढ़ा हुआ है, एनी ऑफ द थिंग्स, तो आप उसको बता देते हैं आजकल इसकी मैनेजमेंट के बारे में ये कह रहे हैं। इवन रिसेंट गाइडलाइंस अगर आपके पास नहीं है, आपको पेपर याद या उस वक्त याद नहीं आ रहा या नहीं पढ़ा, तो दैट कैन हेल्प। लेकिन आप अच्छे कैंडिडेट्स बने कि आप रिसेंट अपडेट्स प्रिपेयर करके आए, एनी ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री का रेफरेंस और एनी अदर लोकल रेफरेंस भी गुजारा कर जाएगा, लेकिन आपको अपनी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। इन सब की मार्किंग है सेपरेट, मेरे बाकी प्लीज आपसे शेयर करेंगे। फिर लास्ट दो स्लाइड्स है हमारी। नेक्स्ट, क्या स्केल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वैसे तो हमने सारी डिस्कस कर ली। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में भी एक चीज जो हमने बात करनी थी वो मेरे ख्याल में एक स्लाइड स्किप हो गई कि आपका लॉन्ग केस जो है वो असेसमेंट है आपकी सब चीजों की। ये असेसमेंट है आपके नॉलेज की, आपकी स्किल की, अफेक्शनेट बिहेवियर की, ऑल थ्री डोमेन्स असेस होते हैं। और दिस लॉन्ग केस इज द बैकबोन ऑफ असेसमेंट एंड इट कैन मतलब मेक योर डे। आप पास हो सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी करके आए हैं, इसी लॉन्ग केस में आए, और साथ कैंडिडेट का फेट है वो लॉन्ग केस डिसाइड करता है। तो प्लीज इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। और वैसे भी अच्छे और बुरे साइकियाट्रिस्ट में भी यही साइकियाट्रिक असेसमेंट ही डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखते हैं हमारे सामने कैंडिडेट्स उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। आईज डू नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होगा, फिर ही आप उन क्लूज को पिक करेंगे। वो जो कैंडिडेट सामने बोल रहा है, दूसरे एग्जामिनर्स को भी दूर बैठे नजर आ रहा है कि उसमें फ्लाइट भी है, उसमें ग्रैंडियोसिटी भी है, उसमें एबिलिटी आइडेंटिटी की अगर आप उसको मिस कर दें तो फिर ट्रबल है। सो इंटेलिजेंट एंड विजिलेंट यूज ऑफ स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज एक्टिव लिसनिंग आप स्टार्ट में यूज करते हैं। फिर टाइमिंग ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड एंड लीडिंग क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ फनलिंग, पैराफ्रेजिंग
and selective reflection. These are some of the concepts जो आप अपनी behavioral sciences में पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं. इन सब को appropriate way में use करें. इरहान साहब की बुक में हैं भी. Further हम next slide में देखते हैं जी, skills required में. Next slide, Dr. Ayub, please. Unconditional positive regard हो आपका patient की तरफ. Warmth and consideration को आप ये जो counseling के some of the principles हैं इनको consider करें. क्लैरिफिकेशन है, अगर आपको कोई चीज नहीं होती क्लियर आप उनसे दोबारा पूछ लें या आप खुद कह दें, रिपीट कर दें कि यही आपका पर्पस है. प्रोबिंग आपको हेल्प करेगी, प्रॉम्प्टिंग हेल्प कर सकती है फर्दर क्लियर करने में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, कॉम्प्लिकेशंस को जानने में, क्लैरिटी में, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को जानने में, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगी. एंड जैसे कि आपका पेशेंट आपसे चला जाए 45 मिनट्स एंड पे आप समराइज करके उसके साथ आखिरी 5 मिनट में कि यही आपने कहा है, आप कुछ और तो नहीं कहना चाहते या कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो रह गई है, तो आपको उसमें बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं. These are some of the suggestions related to this. अब जैसे मैंने पहले बात की कि केस वाइज वेरी कर सकता है. आपके पास डिफेंस होना चाहिए अनयूजुअल केस का, जहां आपको कैटाटोनिया में मे बी स्टार्ट ही फिजिकल एग्जामिनेशन से करना पड़े, जहां आपको स्टार्ट इंटरेस्टेड एग्जामिनेशन से करना पड़े. मेनिया वाले पेशेंट हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री के बिट्स एंड पीसेस आप लेटर ऑन कलेक्ट कर सकते हैं या आपके समटाइम मिसिंग भी हो सकते हैं, आपको उसका मार्जिन दिया जाता है. डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, आपके उस डे पे आप कितने उसके बारे में वेल वर्स्ड हैं, उन चीज़ों को असेस करने के बारे में. डिफिकल्ट पेशेंट होते हैं, म्यूट पेशेंट होते हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले होते हैं, आईडी वाले होते हैं, साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटी वाले होते हैं, तो आपको असेस करते हुए समटाइम्स टाइम लग जाता है. तो उन चीज़ों को आप मैनेजमेंट में भी और अपने असेसमेंट प्लान में अच्छी तरह एम्फसाइज करें, फोकस करें और उन पे मतलब यू कैन विन मोर मार्क्स एंड यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग सो मेनी एस्पेक्ट्स. मेरे कोलीग भी कुछ इसमें ऐड कर देंगे एंड वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कमेंट्स. डॉक्टर यू फिर नेक्स्ट स्लाइड हम कर लें. ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हो गई है. अगर आप इजाजत दें तो अब मैं अपनी वीडियो ऑन भी कर लेता हूँ या लोगों के क्वेश्चन और कमेंट ले सकते हैं. यस सर प्लीज. अयूब साहब आप इसको स्टॉप शेयर करते हैं. All right. Now the house is open for questions. आप लोग अपना raise hand option use कर सकते हैं. There are some questions in the chat as well. मैं देख रहा था. अयूब साहब, if you can coordinate. All right. Okay, sir. There's a question from Dr. Sadaf Mumtaz. In psychosocial history, what should be asked? जी जी. साइकोसोशल हिस्ट्री में ऑफ कोर्स आप लिंकेजेस देखते हैं, कौन से सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इलनेस की कॉज बन सकते हैं या उसके कोर्स को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं. और साइकोसोशल असेसमेंट का एक पूरा फॉर्मेट है, बिहेवियरल साइंसेज की बुक में भी दिया हुआ है. I think she is asking about psychosexual history. हाँ, psychosexual history is of course one important aspect, जिसमें आप of course आप सजेशन ये है जब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, देन यू गिव एन ओपनिंग स्टेटमेंट जो आप एक तरह के इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो कि आप मैं आपसे आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो हमें आपकी बीमारी समझने में हेल्प करेंगे और इसकी मैनेजमेंट में. एंड देन यू उसकी ऑफ कोर्स रिलेशनशिप विद द हस्बैंड एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स, एनी एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल अफेयर्स, अगर वो अनमैरिड है उसकी मैस्टरबेशन से लेकर उसकी फैंटेसी से लेकर एज ऑफ पेशेंट के अकॉर्डिंगली आप टेलर कर सकते हैं. एक फॉर्मेट उसका आपकी बुक्स में आपके पास भी है. सारी चीजें नहीं पूछेंगे, जो आपके करंट पेशेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है यू शैल बी आस्किंग, कभी इसको मिस ना करें. और ये जो हमारे एग्जामिनर्स थे उनका तो बड़ा फेवरेट एरिया था, वो हमको कहते थे टाइम लिमिट नहीं होती थी कि मैं आपका पेशेंट हूँ, ये मेरे पे करके दिखाएं. तो आप लोग भी इस इंपॉर्टेंट एरिया को कभी मिस ना करें और हमेशा इसको डू आस्क. Okay, sir. We have another question
that what about judgment in MSc and what type of case should we ask about question asked about judgment? जजमेंट के बारे में तो डॉक्टर सर आप इसका जवाब देना चाहें तो दे दें सर. स्पेसिफिकली जजमेंट एज सच ना कोई जनरल नॉलेज के बारे में करते हैं या आप कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में कुछ सेपरेट जजमेंट का क्वेश्चन है डॉक्टर सर आप हेल्प करना चाहते हैं इसमें? I think possibly it looks like the candidate is wanting to ask if the mental state examination कर लिया है and what conclusion are you trying to reach to it. I think the simple answer is कि must remember one thing कि जब true examination में आपके patients आते हैं for the candidates तो वो different stages पे आपके पास आते हैं. Sometimes it happens कि वो patient admit हुआ है अब already treat होके आपके पास आया होता है. Sometimes it is कि they come at the very end when they're almost treated. तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो चाहे फॉर्मुलेशन में जो भी एग्जामिनर के पास है एग्जामिनर्स आर वेरी कीन एंड दे सी के आपने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में क्या किया है. आई थिंक प्रोफेसर इम्तियाज डोगर हैज ऑलरेडी अलूडेड ऑन दैट. सो आई थिंक व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट जजमेंट द बेस्ट आंसर इज के उस वक्त जो आपने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किया है अब उस पर बेस करें कि व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस. Do not please try doing this thing जो most candidates करते हैं कि वो different centers में 2 दिन पहले जाते हैं और रातों को जाके patient की histories उठाते हैं वो patient सामने आ जाए और वो वही formulation पे discuss करते हैं कि सर मेरे ख्याल में ये diagnosis है. तो वो fake होता है कि examiners को भी पता चल जाता है क्योंकि जो interview आप करते हैं वो different होता है. So I think simpler answer again is based on what you see there and then and what mental state examination you have आप उस पे comment करें उस पे judge करें. But you can always say as a good resident कि सर मेरा अपना ख्याल है कि there are other possibilities also. स्टेट एग्जामिनेशन प्रोफेसर असद ने इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा. बिल्कुल आप जैसे प्रोफेसर इम्तियाज साहब कह रहे हैं और असद साहब कह रहे हैं लेकिन अगर फिर भी रेजिडेंट बाज़ औक़ात मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती और वो कहते हैं कि जी एग्जामिनर्स को हम एग्जिबिट कर दें कि जजमेंट का क्वेश्चन मैंने कर लिया है तो तो उसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन मतलब वो हाँ तो एक सिंपल क्वेश्चन वो कर सकते हैं कि ये मतलब वो कि एग्जामिनर को रिफ्लेक्ट हो जाए कि हाँ मैंने जजमेंट के एरिया को कवर कर लिया है. तो मतलब कि जैसे एक सिंपल क्वेश्चन उनसे ये कर लें कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एक स्टैम्प शुदा और उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है आपको एक सील लिफाफा मिल जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे. तो एक्सीलेंट. हाँ तो वो एक मतलब जैसे वो हाँ एग्जैक्टली तो बस वो उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा. जी थैंक यू प्रोफेसर अजीमी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन जी. Okay, with that we are taking our last question. This is from Dr. Dolat Ram. How to take consent from psychotic patient? It's difficult. लेकिन चूंकि साइकोटिक पेशेंट है वो आपके पास लाया गया एज ए कैंडिडेट तो डेफिनेटली मैंने तो अच्छा कॉन्सेंट दे देते हैं ऐसी बात नहीं है. रह गए आपके स्किज़ोफ्रेनिक उनको आपने अपना फर्ज पूरा करना है बताने का और यूजुअली अगर वो कैंडिडेट होना एक्सेप्ट कर लेते हैं लाते हैं तो it's not difficult. They are ready to answer your question. Majority of the time हमने exam situations में candidates को जो आपके होते हैं mock patients या दूसरे patients होते हैं वो refuse नहीं करते. लेकिन आपने सारी चीजें पूछनी है कि आप उनसे क्यों इनकी डिटेल ले उनका पर्पस बताना है कि this will help कि हम आपकी मैनेजमेंट बेहतर कर सकेंगे. आप हमारी के बारे में ज्यादा जान सकेंगे और आप गाइड करेंगे कि ये हम आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को बताएंगे. ये नहीं कहेंगे आप उन्हें फॉल्सली रीच लिए आपके ट्रीटिंग यूनिट के डॉक्टर को हम बताएंगे. तो आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट ले लेते हैं. साइकोटिक पेशेंट भी दे डू गिव. Thank you, Professor Dogar, for such a nice presentation. Now I would request Professor Dr. Muhammad Iqbal Afridi, President CPS, kindly present the certificate of appreciation to our worthy speaker and say a few concluding remarks. Before that, I would like to thank you, Professor Imtiaz Dogar, for selecting this topic, and this was really important, not only for passing examination, but also for good clinical practice. And number two, you covered most of the areas, but one thing which I have observed in my as examiner, that अक्सर ये होता है कि वो लोग एक स्किज़ोफ्रेनिया बता देते हैं और साथ में वो नहीं बताते हैं कि इसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या ओबेसिटी है. फिजिकल तो बेहतर है कि डायग्नोज करते हो या एनीमिया है.
इसकी वजह ये है कि आप जब दवाई लिखेंगे तो दवाई की सिलेक्शन उसकी फिजिकल और कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से ही होगी, और जब आप उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बताएंगे तो उसी तरह से डाइट और एक्सरसाइज की वो होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर एनीमिया है तो वो वहाँ मेंशन जरूर करें, तो डायग्नोज बताते हुए चाहिए ये कि होलिस्टिक अप्रोच हो कि साइकेट्रिक डायग्नोसिस और अदर कोमॉर्बिडिटीज, ताकि जब आप तशखीस के बाद टेस्ट करें तो उसको फिर अगर हाइपरटेंशन वाला होगा तो उसको लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में, और अगर इस तरह डायबिटीज है तो हेमोग्लोबिन A1C मेंशन करना होगा, और ट्रीटमेंट भी देते हुए कुछ ड्रग्स जो हैं वो जैसे कि ओलेंजापिन को देते हुए एहतियात करेंगे कि ओबेसिटी या हाइपरटेंशन या डायबिटीज है। तो मैं समझता हूँ अक्सर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाते, वहां पे डायग्नोज करते हुए आप कहें कि साइकेट्रिक डायग्नोसिस और नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डायग्नोज दोनों लिखने चाहिए, ताकि आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंगली हो। बहुत शुक्रिया। और अब हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। जी इम्तियाज साहब। सर खड़ा हो जाता हूँ। जी तो वेरी थैंकफुल, माशाल्लाह आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और मेरे ख्याल में कैंडिडेट्स को लाजमी ये चीज हेल्प करेगी टू ईज आउट देयर एंजाइटी। एंड दिस लॉन्ग केस मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज है हमेशा उनके रिजल्ट के लिहाज से और उनके असेसमेंट के लिहाज से, और इवन उनके लिए एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए। अच्छा, एक और बात ये कि हम जो भी जिस स्पीकर को ज़हमत देते हैं उसको फिर ठीक ठाक जो सवालात किए गए जो कि बहुत ही उम्दा सवालात होते हैं वो भेजते हैं, वो उन सवालों के जवाब फिर वापस लिख के ताकि उन तक पहुंचे और हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो लिहाजा आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है जी? जी जी श्योर। अच्छा, एक मिनट लग गया, हो गया, लगा दें, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, उसको आप चलो, आपको पता नहीं नजर आ रहा है सर्टिफिकेट या नहीं आ रहा है, शायद वो उसको बंद कर दें। उसको नजर आ रहा, लेकिन हमें भेज दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। नहीं, उसको बंद कर दें, वो जो प्रेजेंटेशन को बंद कर दें आप। अच्छा अच्छा, चलें, बहरहाल वो उसमें नजर नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आप ये भी बताता चलूं कि हमारे वार्ड में सारे हम एक लाइन से कई लोग बैठे हुए हैं, और उसको हम चाहते हैं कि जो ऑनलाइन जितने नजर आ रहे होंगे उसको आप समझ लें कि 2 से ज़रब दे दें, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। और खास तौर पर मैं असद तमीजुद्दीन प्रोफेसर और मुख्तार साहब का शुक्रगुजार हूँ, और इसके साथ साथ जो हमारे उजैर साहब हैं उनका और उसकी टीम का खास तौर पर जो है एको वालों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस टीचिंग एक्टिविटी में हमारा साथ दिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा इससे एक और प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट हफ्ते हाजिर होंगे। सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, और इस पेंडेमिक के मौके पे हम सबको, हमारे मुल्क को, पूरी ग्लोब को अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ दे। बहुत शुक्रिया। और अच्छा, ये भी बताता चाहूँ, मेरा ख्याल है कि हमारे साथी चूंकि अभी सब्तेन साहब अभी हाल ही में कोविड से फौत हो गए हैं, और उन्होंने बेचारे ने मुझे कहा कि आप अपना मुझे इंजेक्शन कहीं से वो करें, अवेलेबल कर दें। मैं भेजा था, तो हमने तो अपने वार्ड में एक कॉन्डोलेंस मीटिंग की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म की कुरान खानी की। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हम सबको सब्र, तहम्मुल और नेक राह दिखाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Thank you. At आखिर में we are very thankful to Executive Committee PASA Trust, Executive Committee PASA HealthNet Echo Pakistan, our Administrator Mrs. Kiran, and 90% Haris and Salman. Thank you. Till next time. Allah Hafiz. Hafiz.